आज की क्लास में हम ऐसा करते हैं, अक्टूबर नवंबर 2025 पेपर 4-5 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। ये इंस्ट्रक्शंस हैं, आपको ऑलरेडी पता है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। The very first thing is that the forces are in equilibrium. Find the value P and the value of Q. So what we have to do is that equilibrium means that summation of Rx should be equals to 0 and summation of Ry should be equals to 0. तो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। जैसे ये देखो, ये आपने समीशन ऑफ आर एक्स किया, उसको रीअरेंज किया, एंड देन समीशन ऑफ आर वाई को सॉल्व किया, उसको रीअरेंज किया। तो Q इज 37.2। और इस बात का भी ख्याल रखना है कि करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स करने हैं आपने नॉन एग्जैक्ट आंसर्स को, एंड P इज 27.6 न्यूटन। इज इट क्लियर? Let's move to question number 2. An athlete runs along a horizontal road. The athlete starts from rest and accelerates at 0.5 meters per second, reaching the speed of v. What does it mean? It means that there is a constant acceleration and this point will be v. The athlete maintains the speed of v meters per second for time t seconds. So this will be the time t before decelerating at 0.2 meters per second. So before decelerating mean that this will be the point. This will be the time 2:46. This will be t. This will be v. यहां पे जो टाइम है इसको हम लेट से t बोल देते हैं। Is it clear? Okay. Now, important thing in part B, find t in terms of v. Find t in terms of v. So for this, what we have to do, okay, when the graph is given to you, you have to use the gradient or the area. अब इसमें अगर आप नोट करो that the acceleration for this part is given to us and this one is a velocity time graph. So velocity time graph है तो हमने क्या करना है, ग्रेडियंट फाइंड करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगी। सो फॉर द इंटरवल 0 to t एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू, अब हमें पता है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, t एंड v, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0 एंड 0। ठीक है, तो ये क्या होगा, v माइनस 0 डिवाइडेड बाय t माइनस 0। ऐसे ही होगा ना, y2 माइनस y1 divided by x2 minus x1. So now we know that the acceleration for the first part is 0.5 meters per second square. So acceleration is 0.5 is equals to v divided by t. So time will be equals to v by 0.5. Is it clear or not? अच्छा, अब फर्स्ट थॉट तो ये आती है कि सर हमें तो टी फाइंड करना है, कैपिटल टी फाइंड करना है, तो इसका तो कोई फायदा नहीं है। बट द थिंग इज दैट वी हैव टू फॉलो द प्रोसेस, और प्रोसेस यही है कि अगर आप एक्सेलरेशन फाइंड करते हो, ग्रेडियंट फाइंड करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ अब मैं आपको जो पॉइंट बताना चाह रहा हूँ उसको गौर से सुनना है, बिकॉज ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है। नाउ हियर सेकंड पार्ट में देखो क्या लिखा है, decelerating at 0.2 meters per second square। और हमें पता है कि जब हम ग्रेडियंट निकालते हैं तो हम एक्सेलरेशन निकालते हैं, बट यहां पे तो डिसेलरेशन गिवन है। सो डिसेलरेटिंग को हम क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव
For the second part, for this part, acceleration is minus 0.2. ऐसा है या नहीं है? बताएं। ऐसा है ना? Okay, now it means that for deceleration, for the second half, we know that here the coordinates are capital T and V, and here the coordinates are 246 and 0. So, for the second half means that from T to 246, T to 246, the acceleration will be equals to 0 minus V divided by 246 minus T. कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। Is it clear now? Or we know that acceleration is minus 0.2. So minus 0.2 is equals to minus V divided by 246 minus T. So we can say that we can cancel out this negative sign. Minus 0.2 into 246 minus T is equals to minus V. So we can cancel out this negative sign. So this will be equals to 246 minus T is equals to V. अब हमने फाइंड क्या करना था? T in terms of V. ये डिवाइड हो गया यहां पे, ठीक है। अब आप अगर इसको ये लिखें 1 divided by 0.2, 1 divided by 0.2, what will be the answer? 5. So it means that 246 minus T is equals to 5V, and then if you rearrange it, so this will be 246 minus 5V is equals to capital T. This will be the answer for T in terms of V. Now, hence show that 7V square minus 492 plus 2700 is equals to 0. तो इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसके लिए we can see the distance, we can see that the total distance of 1350 meter in 246 seconds is this. तो हम क्या करते हैं? डिस्टेंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? एरिया अंडर द ग्राफ, बिकॉज वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप एरिया निकालते थे, ऐसे ही है ना? सो दिस वन इज अ ट्रेपीजियम. सो ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 into sum of parallel sides. So one side is 246. बात समझ आ रही है ना? हाँ, that this length is 246. Exactly, capital T minus small t. So capital T plus capital T minus small t into height. Height is V. ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे? अब हमें डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस इज 1350. सो वी कैन राइट 1350 इज इक्वल्स टू 1/2 into 246 plus 246 minus 5V minus, अब बाय द वे 1/0.5 क्या होता है? 2V. Yes, this will be 2V into V.
किसी को ये समझ आई कि 2v कैसे आ रहा है? बिकॉज हमने इसको सिंप्लीफाई किया है. दिस विल बी इक्वल्स टू 2v. 1 डिवाइडेड बाय 0.5 करो, योर आंसर विल बी 2v. कैलकुलेटर पे आप लिखो. देखो आपके पास ये यूं है ना, आपके पास है जी टाइम इज इक्वल्स टू 1/0.5v. तो आप 1/0.5 कैलकुलेटर पे जस्ट टाइप करो, देखो क्या आंसर आता है. इट विल बी 2. ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, बिकॉज 2 कंप्लीट साइड के नीचे डिवाइड हो रहा है, इस तरफ ले आओ. सो 246 प्लस 246, व्हाट विल बी द आंसर? 492. So 492 minus 7v into v. अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, योर आंसर विल बी 0 इज इक्वल्स टू -7v² प्लस 492v minus 1350 multiplied by 2. 1350 multiplied by 2. So 2700. So you can see that your final answer should be this. अब इसमें हमारा सिर्फ साइंस का डिफरेंस आ रहा है, तो हम इसको राइट साइड पे मूव करें. 7v² माइनस 492 plus 2700 is equals to 0. This will be the final answer. 492v. 492v. ये देखिए ऊपर भी है ये. Is it clear? Let's move to the B part. Find the value of v, giving a justification for your answer. Exactly. For the last one, you have to solve it simultaneous. You have to solve a quadratic equation, but please make sure that you have to show your working. So a is 7, a is 7, b is minus 492, and c is 2700. So you will have two answers. The first one is v is 6, and the v is equals to 6, and v is in the fraction. वो क्या था आपके पास? 450 by 7, which means 64.2. ठीक है. अब find the value of v. Now इसमें v is equals to 6 will be the final answer, because आप इसको मेन इक्वेशन में पुट करो. यू कैन सी कि अगर आप v की वैल्यू 6 पुट करो तो आपके पास एक्सेलरेशन क्या आ रही है? आप इस क्वेश्चन के अंदर इसको वेरीफाई करोगे. v आप 6 पुट करोगे तो आपके पास एक्सेलरेशन 0.5 आ रही है. ठीक है. और अगर आप v की वैल्यू 64.2 पुट करोगे, ये आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा. सो दिस विल बी द फाइनल आंसर. कोई डाउट है तो बताओ. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3, अ कार ऑफ मास इज 800 kg. तो जब आप इसकी डायग्राम बनाएंगे, you can see that the horizontal section, and then you have the car is working at PW. अच्छा, हॉरिजॉन्टल सेक्शन आपने ड्रॉ तो नहीं किया, लेकिन हॉरिजॉन्टल सेक्शन में आप अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? ये आपके पास पार्टिकल है, ठीक है, कार है, और हॉरिजॉन्टली ये मूव कर रहा है. ठीक है. एंड विद द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड. अब आपको पता है कि ये आपके पास ड्राइविंग फोर्स है,
ठीक है, और आपको वेलोसिटी भी पता है। रेजिस्टिव फोर्स आपको पता है क्या है, बोथ सेक्शंस में क्या है, इट्स आर न्यूटन्स। ठीक है, और दूसरी बात ये कि आपको पता है P इज इक्वल्स टू एफ वी, एफ इज द ड्राइविंग फोर्स, सो ड्राइविंग फोर्स विल बी इक्वल्स टू P बाय V। तो बाकी आप कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके, जैसे आपको नजर आ रहा है F इज इक्वल्स टू एम ए आपने अप्लाई किया है, सो P विल बी इक्वल्स टू, ये आप देखो ये जो काम है ये आपके पास हॉरिजॉन्टल सेक्शन के लिए है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन, इज इट क्लियर ना? हाँ, ये F इज बेसिकली द ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, इसीलिए इसको P बाय V की फॉर्म में लिखा हुआ, ये दिस वन इज बेसिकली द ड्राइविंग फोर्स। उसको रीअरेंज किया है। वेलोसिटी आपको पता है हॉरिजॉन्टल सेक्शन में इट्स 20 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, एंड देन आप वर्टिकल या इंक्लाइंड सेक्शन में आपने क्या किया, ये आपकी हॉरिजॉन्टल, ये इंक्लाइंड सेक्शन की वर्किंग है, इंक्लाइंड सेक्शन, तो ये उसकी वर्किंग है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, योर फाइनल आंसर आर विल बी इक्वल्स टू 1800 न्यूटन्स एंड पी विल बी इक्वल्स टू 36,000 न्यूटन्स। इसमें कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। आई होप दैट द वर्किंग इज क्लियर, ये आपके सामने पूरी टोटल वर्किंग है। सेकेंड इंक्लाइन सेक्शन में भी आपने एफ इज इक्वल्स टू एम ए ही अप्लाई किया है। लेट्स मूव टू द बी पार्ट। अब बी पार्ट में find the acceleration of the car when it is moving at 10 meters per second. Now in the second one, what you have to do is find the acceleration of the car when it is moving at 10 meters per second up incline the section of the road. तो अब आपने देखो एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, सिंपल आपने क्या किया, F इज इक्वल्स टू एम ए को अगेन अप्लाई किया एंड देन योर फाइनल आंसर विल बी, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू 0.25। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Okay, let's move to the question number 4.
इस क्वेश्चन में अगर आप देखो, आपको गिवन क्या है, एक्सेलरेशन की इक्वेशन गिवन है, ठीक है, और ये भी पता है आपने फाइंड क्या करना है, इन नेवर एट इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट, गिवन दैट पी इज नेवर एट इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट। तो पहला काम तो ये हुआ कि हमने क्या करना है, सबसे पहले वेलोसिटी की इक्वेशन निकालनी है। तो एक्सेलरेशन आपके पास है के टी -3, तो वेलोसिटी की इक्वेशन कैसे निकलेगी, निकालते हैं। तो वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू के टी स्क्वेयर बाय 2 -3t प्लस सी, ठीक है, वेलोसिटी की इक्वेशन ये। अब सी की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, when time is zero, when time is zero, velocity is 1। तो अब जब आप इसको यहां पे टाइम को 0 पुट करो, वेलोसिटी को 1 पुट करो, तो c की वैल्यू क्या आएगी, c विल बी इक्वल्स टू 1। तो सो इट मींस दैट वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू के टी स्क्वेयर बाय 2 -3t प्लस 1। ये आपके पास क्या है, ये वेलोसिटी की इक्वेशन है, ठीक है। अब द क्वेश्चन इज दैट P इज नेवर एट इंस्टेंटेनियस रेस्ट। सो इंस्टेंटेनियस रेस्ट का मतलब यह है कि अगर मैं इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा तो वो क्या होगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप की बनेगी, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप की बनेगी। अच्छा, अब आपको पता है कि अब हमने यहां क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। सो बी स्क्वेयर -4ac शुड बी लेस देन 0, ठीक है, बिकॉज हम इस पोर्शन के लिए देख रहे हैं। सो नेवर एट रेस्ट इंस्टेंटेनियसली वेलोसिटी इसको नहीं होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास इन दो लेस देन 0 के हिसाब से देखेंगे। सो बी की वैल्यू क्या है, -3 स्क्वेयर -4, ए क्या है k/2, सी क्या है 1, इज लेस देन 0, ठीक है ये। सो 9 -2k is less than 0, -2k is less than -9, and k will be greater than 4.5। ये बात समझ आई है अयान? हाँ, तो इस लेट्स मूव टू द बी पार्ट। Velocity will be equals to k is 2.5, so you can see that velocity will be equals to 2.5 t square by 2, 2.5 t 2.5 t square by 2. Then what you have to do is you have to find the equation of distance. So distance की equation क्या आएगी आपके पास, इसको दोबारा से इंटीग्रेट करना है आपने, ठीक है, इंटीग्रेट करना है। So this will be 5 by p cube minus 5 by 12 t cube minus 3t square by 2 plus t। ओके, नाउ अब हमने लिमिट्स पुट करनी है, लेकिन लिमिट्स से पहले हम क्या करेंगे, हम वैसे यहां से t को कॉमन ले सकते हैं, बिकॉज हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय p इन द इंटरवल दिस। सबसे पहले तो हमें लिमिट्स पुट फाइंड करनी है कि लिमिट्स क्या फाइंड करेंगे। सो लिमिट्स के लिए हम क्या करेंगे, v विल बी इक्वल्स टू 0। तो जब वेलोसिटी को 0 पुट करोगे तो क्या होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 2.5 t स्क्वेयर बाय 2। अच्छा, इसको जरा आप डायरेक्टली मुझे t की वैल्यू फाइंड करके बताएं। व्हेन वेलोसिटी इज 0 तो टाइम की वैल्यू क्या आ रही है, एक 2 आ रही है और एक 2/5, 2/5।
नहीं, रेंज की बात नहीं, 2/5 आपके पास क्या है? नहीं, 2/5 को अगर आप वो करो तो 0.4 आ रहा है। ओके, 0.4 रेंज से बाहर तो खैर नहीं है, लेकिन एक बात यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, 0.5 रेंज से बाहर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 1 से 3 है ना, अच्छा हाँ रेंज से बाहर है। लेकिन एक चीज हम इसमें ये देखते हैं ना, हमेशा ये देखना है कि, और जब भी इंटीग्रेशन के अंदर हो और पेपर 1 के अंदर हो, तो फिर हमने क्या करना है ये मैं भी आपको बताता हूँ। हमेशा आपने पहले इसको वेरीफाई इस तरह से करना है, ठीक है, कि जैसे आप देखो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और आपके पास अब क्या है, टाइम की वैल्यू 0.4 और टाइम की वैल्यू क्या है, 3, ऐसे ही है ना। आपके पास 0.4 और 3, व्हेन वेलोसिटी इज 0, तो टाइम आपके पास क्या है, टाइम आपके पास 0.4 एंड 2 है। लेकिन आपने जो एरिया फाइंड करना है या डिस्टेंस फाइंड करना है, वो कौन सा डिस्टेंस फाइंड करना है, 1 से लेके 3 तक। मेरी बात समझ आ रही है? तो आप जो लिमिट्स पुट करोगे, वो आप पहले 1 to 2 एंड देन 2 to 3, यही चीज आपके पेपर 1 में भी आती है। अगर पेपर 1 में आपके पास ग्राफ इस तरह फाइंड हो कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन से वो अबव जा रहा हो, तो फिर आपने क्या करना है, लिमिट्स को डिवाइड कर देना है। अब आपने लिमिट्स क्या पुट करनी है, 1 to 2 एंड देन 2 to 3, ये आपकी लिमिट्स होंगी, और फिर दोनों एरियाज को फाइंड कर लोगे। जब 1 to 2 करोगे तो आपके पास क्या होगा, आपके पास सिर्फ ये वाला एरिया आ जाएगा, और जब 2 to 3 होगा तो आपके पास ये एरिया आ जाएगा। आप दोनों लिमिट्स को ऐड करोगे, लेकिन ये याद रखो कि एरिया को पॉजिटिव लोगे, एरिया को नेगेटिवली लोगे आप। मुझे जरा ये बताओ कि 1 to 2 का डिस्टेंस क्या आया, 1 to 2 -7/12 आएगा, बिकॉज ये नीचे से अपवर्ड साइड के डाउनवर्ड का कोई भी एरिया होगा वो नेगेटिव नहीं आएगा, बट हम उसको पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि हम दोनों एरियाज को ऐड करेंगे आखिर में, एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। और 2 to 3 का एरिया क्या आ रहा है, 17/12। तो अब जब दोनों का टोटल डिस्टेंस आप निकालोगे तो क्या करोगे, 17/12 प्लस 7/12, तो आंसर क्या आ रहा है, 2 मीटर। इसमें कोई इतनी डिफिकल्ट बात थी नहीं वैसे, सिर्फ इसमें इसमें सिर्फ, हाँ सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है आपने, ये लिमिट्स का ख्याल रखना है। और क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन जब भी आएगी आपने इस तरह से हल्का सा वेरीफाई जरूर करना है कि हमारी लिमिट्स ठीक है या नहीं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. The diagram is given to us. Both things are taut. What does it mean? हाँ, it means that we cannot ignore the tension. ठीक है, दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर टेंशन है। It is given that the tension in the string attached to Q is twice the tension in the string attached to R. So इसका मतलब ये है कि अगर इस साइड पे टेंशन आपके पास T है, तो इस साइड पे टेंशन आपके पास क्या होगी, 2T। ठीक है मोहम्मद असलम, find in terms of G the tension in each of the string, the magnitude of the acceleration of the particle. अब क्या क्वेश्चन में यहां कहीं गिवन है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, गिवन है कहीं पे, नहीं है। हाँ, डाउनवर्ड्स ही होगी, बिकॉज ये आपके पास मास ज्यादा है, सो एक्सेलरेशन आपके पास इस तरफ होगी। ठीक है, अच्छा, अब एक रूल आप अपने पास याद रखो, वो रूल ये है, जब भी आपके पास 3 पार्टिकल हों या 2 पार्टिकल हों या नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हों, तो हर पार्टिकल को आपने सेपरेटली ट्रीट करना है। ठीक है, लाइक आप सबसे पहले क्या करो, पार्टिकल अगर Q को देखो, तो पार्टिकल Q के ऊपर आप F इज इक्वल टू एम ए लगाएंगे।
तो सबसे पहले पार्टिकल क्यू को अगर आप देखो तो इसमें आपको पता है कि इसका आपके पास वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है। टेंशन, अब ये जो टेंशन है ये 2T है, टेंशन जो है वो अपवर्ड एक्ट कर रही है और एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड है, वैसे ही है। ऐसे ही है या नहीं है? तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे F इज इक्वल्स टू एम अप्लाई कर रहे हैं, सो 2T माइनस W इज इक्वल्स टू M इंटू माइनस A, ठीक है। और मैथ ऑफ बी आपको गिवन है, तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो इक्वेशन, आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, 2T मैथ कितना है पार्टिकल क्यू का 5 kg, विच मीन्स 50 इज इक्वल्स टू माइनस 5A, ठीक है। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहां से हम एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगी, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू 50 माइनस 2T डिवाइडेड बाय 5। जी कहां पे? हाँ, 50 को हम 5G कर देंगे, बिल्कुल हमें इन टर्म्स ऑफ जी निकालना है, ठीक है। ओके, उसके बाद अब फर्दर देखो तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, पार्टिकल आर को देखो जरा। अब पार्टिकल आर में आपके पास ये देखो कि वेट की डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है, और टेंशन जो है वो अपवर्ड एक्ट कर रही है और एक्सेलरेशन भी अपवर्ड है। तो इसकी इसमें क्या बन जाएगा आपके पास, T माइनस W इज इक्वल्स टू MA। एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगी बिकॉज अपवर्ड फोर्सेस को हम पॉजिटिव में ले रहे हैं, ठीक है ना ये। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, T माइनस 2G इज इक्वल्स टू 2A। तो यहां से भी हमारे पास टेंशन आ सकती है, ठीक है, टेंशन इन टर्म्स ऑफ ए आ सकती है। तो एक्सेलरेशन आपके पास यहां से क्या बनेगी, दिस विल बी इक्वल्स टू T माइनस 2G डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अच्छा, अब हम अगर इन दोनों को इक्वेट करें तो ये क्या बनेगा, 5G। इक्वेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन तो एक ही है ना। तो ये क्या बनेगा, T माइनस 2G डिवाइडेड बाय 2। तो फिर ये क्या होगा, 10G माइनस 4T इज इक्वल्स टू 5T माइनस 10G, ठीक है। तो यहां पे अगर रीअरेंज करो तो ये बन जाएगा 10G प्लस 10G। वैसे देखो फर्स्ट थॉट मुझे आई थी कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हाँ, क्या बात है आपकी। अच्छा जी, तो यहां से अगर मैं पूछूं टी इन टर्म्स ऑफ जी तो वो क्या होगा, फाइनल आंसर टी इज इक्वल्स टू, नहीं 20/9 नहीं होगा,
20/9 g। आप सिर्फ इसका मतलब ये हुआ कि ये बेसिकली आपके पास दो स्ट्रिंग्स थी ना, दोनों की टेंशन इन ईच स्ट्रिंग्स पूछा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ टी आर इज 20/9 जी, और टी क्यू विल बी इक्वल्स टू 40/9 जी। ठीक है ना? 20/9 जी और 40/9 जी। कोई इशू है तो बताओ। उसके बाद फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो जब टी की वैल्यू आपके पास आ गई तो एक्सेलरेशन, हाँ, वो भी आ जाएगी। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपके पास वो भी आ जाएगी। मुझे इसमें पुट करके बताओ कि क्या होगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 5g माइनस 2t लिखा हुआ है, सो इट मीन्स 2 × 2t का मतलब डायरेक्टली मैं क्या कर देता हूँ, 40/9 जी होल डिवाइडेड बाय 5। तो जी को कॉमन लेके आप आराम से फाइनल आंसर बता सकते हो। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, सो कैलकुलेटर पे आप क्या लिख सकते हो, 5 माइनस फ्रैक्शन 40/9, so this will be 5/9 divided by 5, so answer क्या आ रहा है, 1/9, so your final answer will be 1/9 g। is it clear? तो ये आपके पास टी आर की वैल्यू भी आ गई। टी, अच्छा ये याद रखो कि इसमें नॉर्मली टी क्यू स्किप हो जाता है इस क्वेश्चन के अंदर, बट क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, तो इसीलिए दोनों को मेंशन करना मस्ट है। लेट्स मूव टू द बी पार्ट। इसमें आपने एक चीज नोट की हुई है कि हमने पार्टिकल क्यू को भी डील कर लिया, पार्टिकल आर को भी डील कर लिया, हमारे आंसर्स आ गए। हमने उस टी की वैल्यू को यूज करना है, अच्छा, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। अगेन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मतलब ये हुआ कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करने होते हैं। जस्ट वो ये है कि ये एक्सेलरेशन है, ये 2t है, इस तरफ t है, और ये आपके पास r है। फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ होगी, हाँ बिल्कुल। मुझे बताओ, ये बताओ कि इसमें आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ होगी, अपवर्ड होगी। फिर उसके बाद वेट के कंपोनेंट को इग्नोर नहीं करना आपने। ये वैसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है फोर्सेस का, वेट के क्वेश्चन, हाँ सारा कुछ ही है इसमें। ठीक है, तो अब जब आपने सारे सब चीजें मेंशन कर दी हैं तो वर्किंग में डिफिकल्टी होनी नहीं चाहिए।